Good morning, everyone. Today we are going to start with our last chapter of this term of the book An Alien Hand, and the name of the chapter is Bringing Up Carrie. Carrie here in this chapter is the name of an elephant. So the whole story revolves around him and the narrator. What is the name of the narrator or the author of this chapter? The narrator himself is telling about his elephant. So the narrator is Dhan Gopal Mukherjee. He has shared his experience of bringing up his own elephant, how they both were brought up together and they spent time together. This all is explained in this chapter. So Carrie कौन है? A 5 months old baby elephant who lives and grows up with his 9 years old friend and keeper. 9 years old friend hai, right? The author is 9 years old and he has an elephant which is 5 months old. Carrie does not eat much, वो ज़्यादा नहीं खाता, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Delicious means tasty. So tasty twigs खाता है वो. कितनी twigs खाता है? About 16 kilograms. And playful and sensitive, he is playful by nature and he is quite sensitive. Sensitive का मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझने वाला. He saves a boy from drowning and he is the one who saves a boy from drowning. So let us start reading the chapter now. Carrie the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. जब 5 महीने का था तब मुझे दिया गया था ताकि मैं उसकी केयर करूं. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. Tiptoe होता है अपने अंगूठों के बल. जो टिप ऑफ द टो है उसके उसके ऊपर खड़ा होकर मैं उसकी बैक तक पहुंच पाता था उस टाइम पे जब मैं 9 years का था और एलिफेंट कितना था 5 months old. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और जब तक वो 2 साल का हुआ तब तक वो उतनी ही हाइट उसकी रही. We grew together. We here is referring to the author and the elephant. So हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. शायद इसीलिए मुझे नहीं पता कि जो कैरी था वो कितना tall हो गया था. He lived in a pavilion. Pavilion क्या होता है बेटा? A closed structure covered with walls and a roof. कोई बिल्डिंग को हम कह सकते हैं, कोई भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसकी वॉल्स हैं और रूफ है उसको हम पेविलियन बोलते हैं. अंडर अ थेच्ड रूफ. थेच्ड क्या होता है? मेड ऑफ ग्रास एंड लीव्स. घास फूस की बनी हुई छत. Under a thatched roof which rested on the thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. तो अब उसके रहने की जगह के बारे में बताया गया है कि वो एक पवेलियन में रहता था और वो जो उसकी जो रूफ थी, ग्रास और लीव्स की रूफ थी, वो किस पे रेस्ट करती थी? थिक ट्री स्टम्प्स. बहुत मोटी पेड़ के तने की के ऊपर रेस्ट कर रही थी उसकी जो रूफ थी. सो दैट इट कुड नॉट फॉल. इट हियर इज रेफरिंग टू द रूफ, the thatched roof, so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles. Bump means strike forcefully, hit against the poles as he moved about. You know how the elephants move. तो वो उसकी जो पेविलियन थी वो घास फूस की उसकी रूफ बनी हुई थी और वो 3 मोटे पेड़ के तनों के ऊपर रेस्ट कर रही टिकी हुई थी. वो ऐसा इसलिए था कि ऐसा ना हो कि जब कैरी मूव करे तो वो गिर जाए. क्या गिर जाए? द रूफ. One of the first things Carrie did was to save the life of a boy. सबसे पहली चीज़ कैरी ने क्या की? एक लड़के की लाइफ सेव की. Carrie did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. ज़्यादा नहीं खाता था पर फिर भी however उसको क्या चाहिए होता था? 40 pounds of twigs. Twigs होता है बेटा small branches of tree. बहुत टेंडर सॉफ्ट छोटी छोटी ब्रांचेस होते हैं उनको ट्विग्स कहते हैं. तो उनको च्यू करता था और उनके साथ वो खेलता था. सो हिज डाइट वाज ऑलमोस्ट 40 pounds अ डे. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. और हर रोज़ मैं उसे रिवर लेके जाता था नहलाने के लिए. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और मैं 1 घंटे वो आराम से जो सैंड बैंक है, रेत का किनारा था, उसके ऊपर लेट जाता था और मैं 1 घंटे तक उसकी जो बैक है उसको रब करता था क्लीन करने के लिए. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर
लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था. ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी. एबनी होता है अ टाइप ऑफ अ ट्री. तो उसकी जो स्किन थी वो बहुत चमकती थी, किसकी तरह, एक एबनी, एक टाइप ऑफ अ ट्री, जो एबनी बहुत शाइनिंग ट्री होता है उसकी तरह. एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और वो खुशी के साथ चिल्लाता था जब मैं उसकी पीठ पे पानी रब करता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. फिर मैं उसे कान से पकड़ता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. क्योंकि कान से पकड़ के एलिफेंट को खींचना बहुत आसान तरीका है उसे लेके जाने के लिए. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर. और मैं उसको कान से पकड़ के जंगल के बाहर किनारे पे छोड़ देता था और खुद जंगल में चला जाता था. क्या करने के लिए? कुछ लशियस मीन्स डिलिशियस, टेस्टी ट्विग्स इकट्ठा करने के लिए. उसके डिनर के लिए टेस्टी ट्विग्स इकट्ठा करने के लिए मैं जंगल में चला जाता था. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हेज टू कट डाउन दीज ट्विग्स. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द hedge, because if a twig is multilated an elephant will not touch it. तो मुझे किसी को भी ट्विग्स इकट्ठा करने के लिए, कैरी के लिए ट्विग्स इकट्ठा करने के लिए एक शार्प हैच मीन्स अ स्मॉल एक्स उसकी ज़रूरत होती थी. और उस एक्स को शार्प करने के लिए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाता था. एंड वाई डिड दे नीड द शार्प एक्स टू कट द ब्रांचेस, टू कट द ट्री ट्विग्स? बिकॉज इफ द ट्विग इज मल्टीलेटेड, मल्टीलेटेड मीन्स ब्रोकन, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब नॉट इन प्रॉपर शेप, देन द एलिफेंट विल नॉट टच इट. वो उसको नहीं खाएगा. It was not an easy job to get twigs and saplings for Carrie. और कैरी के लिए ये सब लेना, twigs और sapling, छोटे sapling होता है छोटे पौधे, उनको इकट्ठा करना कैरी के खाने के लिए. It was not an easy job. आसान काम नहीं था ये. I had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs. मुझे सारे trees climb करने पड़ते थे उस most delicious, most tasty और tender means soft twigs इकट्ठा करने के लिए. As he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. तो मैं क्या as जैसे कि कैरी जो था, ही इज़ रेफरिंग टू कैरी द एलिफेंट, वो बहुत ही शौकीन था किस चीज़ के? बैनियन ट्री के छोटे छोटे यंग ब्रांचेस खाने के लिए. और जो बैनियन ट्री की ब्रांचेस हैं, यहाँ पे जो विच है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, वो किसको रेफर कर रहा है? बैनियन ट्री, ट्विग्स ऑफ बैनियन ट्री, राइट. और वो जो बैनियन ट्री की ट्री है वो कैसे ग्रो करता है? लाइक अ कैथेड्रल. कैथेड्रल यहाँ पे एक टावर आएगा, जैसे कि टावर ऑफ लीव्स हो, मीन्स इट इज सो थिक एज इफ इट इज अ टावर ऑफ लीव्स. एंड आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च. मार्च में एक दिन मैं ऐसे ही कुछ ट्विग्स कैरी के लिए इकट्ठे कर रहा था. व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस. जब मैंने सडनली कैरी को सुना कि वो मुझे कुछ दूर से बुला रहा था. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. जैसे कि कैरी अभी भी बहुत छोटा था, तो उसकी आवाज़ जो थी वो एक बच्चे की तरह थी, rather than a grown up elephant. एक grown up elephant की नहीं, rather एक बेबी की आवाज़ लग रही थी. I thought somebody was hurting him, और मैंने सोचा कि शायद कोई उसे hurt कर रहा है. So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. So मैं बहुत जल्दी भाग के नीचे आया और उसकी तरफ भागा. कहाँ पे? उसने कहाँ छोड़ा था एलिफेंट को? एज ऑफ द फॉरेस्ट. बट व्हेन ही रीच्ड देयर ही डिड नॉट फाइंड the elephant there. I looked all over मतलब सब जगह देखा, but I couldn't find him. पर मुझे वो नहीं मिला. I went near the edge of the water. फिर मैं पानी के किनारे गया, and I saw a black something struggling above its surface. और जब मैं पानी के किनारे गया तो मैंने देखा कि कुछ काले रंग की चीज़ जो है वो काफ़ी संघर्ष कर रही है सरफेस पे आने के लिए. Means there was something of black color in the water which was struggling very hard to come on the surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. और जब ये और ऊपर उठी तो क्या था? ये मेरे elephant की
ट्रंक थी, मेरे एलिफेंट की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, और मुझे ये लगा कि शायद वो डूब रहा है। कौन डूब रहा है? कैरी द एलिफेंट। आई वॉज हेल्पलेस, बट मैं बहुत ही मतलब आई फीलिंग हेल्पलेस, आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच बिगर दैन आई। हेल्पलेस क्यों फील कर रहा था ऑथर? क्योंकि जो एलिफेंट था वो काफ़ी बड़ा था उससे, और उसका जो वेट था इट वाज ऑलमोस्ट 400 pounds, तो इट वाज नॉट easy for the author to save that elephant. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. पर फिर मैंने क्या देखा कि उसकी जो बैक थी वो पानी के ऊपर आ रही थी, और जिस क्षण उसने मुझे देखा, the moment he saw me, yes, and the moment he caught my eye means जैसे ही उसने मुझे देखा, he began to trumpet means cry of an elephant. Trumpet elephants जब बोलते हैं तो उनको trumpet बोलते हैं, and struggle up to the shore, और shore पे किनारे पे आने के लिए struggle करने लगा. Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और चीखते हुए ही उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया. He pushed me into the water, पानी में धक्का दे दिया, और जैसे ही मैं पानी में, नदी में गिरा, stream is नदी में गिरा, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. मैंने एक लड़के को देखा जो कि bottom of river पे लेटा हुआ था, नदी के तले पे लेटा हुआ था. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. Afloat means above bottom. वो एकदम नदी के सरफेस के साथ नहीं लगा हुआ था, वो उस थोड़ा सा पानी में तैर रहा था, तले से थोड़ा सा ऊपर था. I came to the surface of water to take my breath, and there Carrie was standing, his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और मैं अपनी सांस लेने के लिए पानी से बाहर आया, because he was suddenly pushed down into the river. So वो he was not prepared to jump into the river, so he had to come back to take his breath. सांस लेने के लिए उसे आना पड़ा. And there Carrie was standing, और जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि कैरी वहाँ पे खड़ा था, उसके his feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और उस सैंड बैंक पे वो अपने पैरों को एकदम रेत में गड़ा के खड़ा हुआ था, और उसकी सूंड ऐसे स्ट्रेच आउट थी जैसे कि वो मेरे हैंड की वेट कर रही हो, एज इफ he wanted to hold my hand and pull me out of the river. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. मैंने दोबारा से जंप किया, आई डाइव डाउन अगेन, दोबारा से पानी में कूदा, बॉय को, अपने उस डूबते हुए लड़के को सरफेस के ऊपर ले आया पानी के. बट क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था, मैं तैर के किनारे तक नहीं आ पाया, एंड द स्लो करंट, करंट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर, वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. मुझे पानी का जो इवन हल्का सा फ्लो भी था वो मुझे दोबारा से अंदर पानी में धकेल रहा था. ड्रैग मीन्स पुल मी डाउन. क्योंकि मैं अच्छा स्विमर नहीं था तो इसलिए जो हल्का सा भी पानी तेज चलता था तो मैं वापस नदी में ड्रैग हो जाता था. Seeing us drift by the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. अब जब कैरी ने हमें देखा कि हम दोबारा से पानी में डूब रहे थे, तो वो कैरी, जो कि यूजुअली नॉर्मली जो कैरी का बिहेवियर था वो क्या था, वो बहुत स्लो था और बहुत थॉटफुल था, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच के फिर एक्शन लेता था. बट जब उसने ये देखा कि हम पानी में डूब रहे थे, सडनली डार्टेड लाइक अ हॉक, एक हॉक की तरह बहुत तेज़ी से पानी के अंदर आया, एंड केम वे हाफ वे इनटू द रिवर, और आधे नदी तक वो आके उसने फिर से अपना ट्रंक जो है उसको स्ट्रेच किया ताकि वो हमें पकड़ के बाहर निकाल सके. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड. मैंने अपना हाथ उठाया ताकि मैं उसकी ट्रंक को पकड़ सकूं. इट हियर इज रेफरिंग टू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, ताकि मैं उसकी ट्रंक को पकड़ सकूं. एंड इट स्लिप्ड, बट मेरे हाथ से उसकी ट्रंक जो थी वो स्लिप कर गई. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन.
But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the riverbed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. Line is quite lengthy, so we'll understand it in parts. आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. मैंने फिर से देखा कि मैं पानी में जा रहा था. बट दिस टाइम आई फाउंड, बट इस टाइम मैं ये पता कर चुका था कि पानी जो है वो बहुत गहरा नहीं है. सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी. तो इसलिए मैं पानी के तले पर गया, सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी के तले तक गया, एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने पैरों के ऊपर पूरा जोर डाल के अपने आप को धकेला. एंड सडनली किक्ड द रिवर बेड, अपने पैरों के ऊपर पूरा भार डाला और रिवर बेड पे हिट करके ऊपर आने लगा. एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो, और एक तीर की तरह सरफेस के ऊपर आने की कोशिश की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड. और मैं इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा कि मैं उस लड़के को भी पकड़ा हुआ था, ड्राउनिंग बॉय को भी मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. सो आई विल अगेन मेक यू अंडरस्टैंड दिस लाइन. सो इस टाइम क्या हुआ कि ऑथर को लगा कि वो फिर से पानी में जा रहा है, बट उसको ये पता था कि इस बार जो पानी है वो ज़्यादा गहरा नहीं है. तो उसने क्या किया, ही सैंक टू द बॉटम, नदी के तले तक गया, अपने पैरों के ऊपर पूरा जोर डाला और उसने रिवर बेड को हिट किया. जब हम फोर्स लगा के हिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द बॉडी विल कम अप. तो वो उस पानी से कैसे बाहर निकला, लाइक एन एरो, एक तीर की तरह. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द, इस फैक्ट के बावजूद कि मैंने उस ड्राउनिंग बॉय को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, आई जस्ट शॉट लाइक एन एरो. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. और जैसे ही मैं अपनी आई रोज अबव द वाटर, अपनी बॉडी को फील किया कि पानी के ऊपर आ रही है. आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक. लेसो इज अ रोप. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गले के आसपास कोई रस्सी है. दिस फ्राइटेंड मी, और इस चीज़ ने मुझे डरा दिया. आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, और मुझे क्या लगा कि शायद कोई वाटर एनिमल मुझे निगल जाएगा. आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. फिर मैंने क्या सुना, एक कैरी की हल्की सी आवाज़ सुनी और मुझे समझ आ गया कि ये कैरी की ट्रंक थी जो मेरे नेक के आसपास थी. दैट वॉज ट्रंक ऑफ कैरी. ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उन दोनों और उस दोनों उसने हम दोनों को किनारे पर पुल करके ले आया. Next, Kerry was like a baby. He had to be trained to be good, and if did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. So Kerry क्या था, एक बच्चे की तरह था. जैसे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं गुड मैनर्स की, वैसे ही हमें कैरी को भी ट्रेन करना पड़ता था टू बिहेव गुड. एंड इफ ही यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, ही वाज अप टू मोर मिस्चिफ देन एवर. सो अगर आप उसे नहीं बताते हैं कि अब वो ज़्यादा शरारती हो गया है, तो he took that for granted and he became more mischievous, more naughty. For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. एग्जाम्पल है एक कि एक दिन किसी ने उसको बनानास दे दिए खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइट बनानास. और बहुत जल्दी उसने क्या कर लिया, उसका जो टेस्ट था वो डेवलप हो गया राइट बनानास के लिए. We used to keep large plates of fruit on the table near a window in the dining room. We here is referring to the family of the author. तो वो लोग क्या करते थे, एक बड़ी सी प्लेट में फ्रूट्स रखते थे, and they used to keep that plate near the window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared. Disappeared means vanished, and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. और जब वो सारे fruits disappear हो गए तो किसको blame करा, servants को, who were in the family. A few days later the fruits disappeared again. कुछ दिनों के बाद जो fruits थे वो फिर disappear हो गए, right? And the family, this time the blame was put on me. और इस बार blame किस पे डाला गया, मेरे पे. And I knew I had not done it. और मुझे पता था कि मैंने ये नहीं किया. It made me very angry
with with my parents and the servants. और इसने मुझे मेरे पेरेंट्स sorry, it made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruits. ठीक है, तो मुझे श्योर था कि उन्होंने सारे फ्रूट्स उठाए हैं. The next time the fruits disappeared, और अगली बार जब fruits disappear हुए, I found a banana all smashed up in Carrie's pavilion. Smashed up means completely destroyed. तो मैंने क्या देखा कि जो बनानास थे वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे. कहाँ पे? कैरी की पवेलियन में. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट्स देयर. एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. जब मैंने उसके पवेलियन में बनानास देखे तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि मैंने उसे कभी फ्रूट्स खाते हुए नहीं देखा था. जैसे कि आपको पता है दैट कैरी लिव्ड ओनली ऑन ट्विग्स. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज. और अगले दिन मैं जब ये सोच रहा था कि मैं फ्रूट्स उठाऊं कि ना उठाऊं, मुझे फ्रूट्स लेने चाहिए विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, शुड आई टेक सम फ्रूट्स टू ईट, बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड दिस टाइम अगेन ही वुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट. एंड सडनली वॉट डिड ही सी? अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक बहुत लॉन्ग और काली चीज आई, वेरी मच लाइक अ स्नेक. और वो किसकी तरह लग रही थी? स्नेक की तरह. सडनली केम थ्रू द विंडो, विंडो में से आई, एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. और वो चीज जो थी, लॉन्ग ब्लैक थिंग विच अपियर्ड लाइक अ स्नेक, टुक ऑल द बनानास एंड डिसअपियर्ड. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन, मैं बहुत ज्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, क्योंकि मैंने कभी स्नेक्स को बनाना खाते हुए नहीं देखा था. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट्स. और मुझे ये लगा कि बहुत ही ज़्यादा भयानक टेरिबल स्नेक होगा जो कि कमरे में आया. दैट वुड स्नीक इन मीन्स कम सीक्रेटली, जो सीक्रेटली कमरे में आया और सारे फ्रूट्स ले गया. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे से बाहर गया. एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. और मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था और इसलिए मैं घर से बाहर चला गया, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. और मैं किस चीज के लिए श्योर था? कि वो जो स्नेक है वो घर में आएगा, सारे बनानास खाएगा और हम सबको मार देगा. ये मेरे मन में ये डर था, इसलिए मैं घर से बाहर भाग गया. As I went out, I saw Carrie's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. और जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने क्या देखा कि कैरी था, वो उसकी बैक देखी उसने, पेविलियन की तरफ जा रहा था. एंड एज द ऑथर वॉज वेरी मच अफ्रेड, ही वॉन्टेड कैरीज कंपनी टू चीयर हिम अप. उसको खुश करने के लिए उसको कैरी की कंपनी चाहिए थी. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास. मैं उसके पीछे गया और मैंने क्या देखा? वहां पेविलियन में कैरी जो था वो बनानास खा रहा था. आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट, मैं एकदम सरप्राइज्ड रह गया, वहीं पे खड़ा रह गया सरप्राइज से. द बनानास वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम. और मैंने क्या देखा कि जितने भी बनानास थे वो सारे स्मैश्ड बनानास उसके आसपास बिखरे हुए थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. तो अब उसने क्या किया? ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया और जो बनानास उससे जो जहाँ पे वो खड़ा था उससे थोड़ी दूरी पे बनानास थे, तो उसने अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया उन बनानास को लेने के लिए. दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज्ड दैट कैरी वॉज द थीफ. और उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो जो ब्लैक ट्रंक थी, मैं स्नेक समझ रहा था, वो ट्रंक जो थी वो एक्चुअली स्नेक नहीं था, वो कैरी की ट्रंक थी. एंड हु वाज द थीफ? इट वाज कैरी. आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruit these many weeks. और मैं खुशी खुशी गया और अपने पेरेंट्स को बताया कि ये जो पूरे हफ्तों में मैंने नहीं फ्रूट्स खाए थे, इट वाज
Carrie, who ate all the fruits. Then I scolded him. फिर मैंने उसे डांटा. For elephants understand words as well as children. And I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. क्योंकि मैंने उसे डांटा, क्योंकि जैसे बच्चे शब्दों को समझते हैं वैसे ही एलिफेंट्स भी शब्दों को समझते हैं. और मैंने उसे डांटते हुए क्या कहा, अगर तुम नेक्स्ट टाइम फ्रूट्स चोरी करोगे या मैंने तुम्हें फ्रूट्स चोरी करते हुए देख लिया, यू विल बी विप्ड, तुम्हारे चाबुक लगेंगे, तुम्हारी पिटाई होगी. He knew that we were all angry with him, even the servants. उसे पता था कि हम सब उसके साथ गुस्सा हैं. इवन की जो सर्वेंट्स थे वो भी उसके साथ गुस्सा थे, because they were also blamed because of Carrie. So they were also angry with the elephant. His pride was so injured that he never stole anything from the dining room. और उसका जो अभिमान था वो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ कि उसके बाद उसने दोबारा डाइनिंग रूम से कभी भी कुछ स्टील नहीं किया, चोरी नहीं किया. एंड फ्रॉम देन ऑन if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और उसके बाद जब किसी ने कभी उसको कोई फ्रूट्स दिए खाने के लिए, उसने अपना सिर ऐसे हिलाया as if he is saying thank you. He doesn't want it. So an elephant is willing to be punished for having done wrong. But if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. So elephants जो हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है, so they are always ready to take that punishment. But if you scold them without any reason, then definitely they would pay you back. वो उस चीज़ को भूलते नहीं हैं और वापस आपको पे करते हैं. They take revenge. So an elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. So it means that a training should be given to the elephant, right? You teach him these things as you teach a child. और उनको कैसे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि बच्चों को सिखाई जाती हैं. If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप उसका कान पकड़ के कान खींचते हैं और साथ में धत वर्ड यूज करते हैं, धत वर्ड बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा कि ये बैठने के लिए कमांड है, उसको बैठने के लिए कमांड दी जा रही है. सिमिलरली इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक. और ऐसे ही अगर आप माली वर्ड बोलते हैं और उसकी सूंड को खींचते हैं, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये सिग्नल है किस चीज के लिए, टू वॉक. कैरी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स. 3 लेसन्स के बाद कैरी ने ये कमांड सीख ली थी माली. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. पर उसे धत वर्ड को, धत कमांड को सीखने के लिए 3 वीक्स लग गए. ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन. वो बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? और क्या आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाना चाहिए कि वो बैठ जाए? Because he grows taller and taller than you, who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. क्यों उसे ये कमांड सिखाना ज़रूरी है? क्योंकि वो ग्रो, ही कंटिन्यूज टू ग्रो टॉल एंड टॉल. वो बड़ा बड़ा टॉल एंड टॉल होता ही जाता है. और जब 2-3 साल हो जाते हैं एंड यू वांट टू रीच टू हिज बैक, आपको उसके बैक पे बैठना है या पहुंचना है, देन यू नीड अ लेडर. सो व्हेन ही लर्न्स टू सिट डाउन, obviously you can reach his back easily. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? तो इसीलिए इट इज़ वेरी गुड कि उसको ये कमांड सिखा दी जाए बैठने की. क्योंकि कौन है जो अपने साथ इसको कमांड को, लेडर को ऑलवेज कैरी करना चाहेगा एलिफेंट की बैक पे बैठने के लिए. So today we'll read up to this.